The Samvat year gone by has been a year of prosperity, not only for equity markets, but real estate, precious metal, and equity markets. It's been a prosperous Samvat year gone by for India as a country and for Indians as savers, as investors. But where do we go from here? The bull market, which started in the throes of COVID, is that here to stay? Can we ignore the price action in October as mid-air turbulence? And what should be the best way to maximize gains, to increase your knowledge, and to also understand the true potential of Hindustan? Let's discuss all that and much more with none other than Madhusudan Kela. I always look forward to our interaction because in last 30 years, I have learned a lot, and I'm sure our viewers would also like to learn a lot from today's interaction. Thank you very much. Wish you a happy Diwali. Thank you for joining us. Thank you, and wish you a happy Diwali to you, to all your viewers and the entire ET Now family. Mata You're Rani part bless of all ET Now of you. family now. Absolutely. Mata Rani. That's why I'm wishing my own self. It's good to see you laughing. Thank and you, everybody in last 12 months has been laughing. If you bought real estate, you've made money. If you had gold and silver, you've been happy. Sure. And if you have equity market, you have every reason to smile and laugh. Exactly. So it's been a year of full all-round prosperity. Sure. Nikunj, it's not only 1 year. I would say from the COVID bottom, what the market made as a bottom, last 3-4 years actually has been very good, right? If you look at the CAGR compounding up a small cap index or mid cap index, it is above 40%. Even Nifty from the low has compounded reasonably well. And stock pickers have had a phenomenal run in the last 3-4 years, right? So that is the context in which we are sitting today, right? So what is required, in my opinion, A, is to recognize that lot of money is being made and we should not credit all of that money making to our smartness, right? और अपने शाने हो गए ऐसा नहीं समझने का, ये बहुत सारा तकदीर से हुआ है, लक से भी हुआ है, everything falling in place, India falling in place, equity market falling in place. So that recognition that yes, it is not only because of my capabilities that I made money, that is the number one. Second, one should not extrapolate this. Because if you start extrapolating last 4 साल इतना अच्छा हुआ है और अगला 4 साल भी इतना ही अच्छा होने वाला है, then there will be expectation mismatch and you will end up taking risk which is not warranted, right? तो अगर वो बाजार का धारा है, पिछला 25 साल से भी बहुत बुल मार्केट आया, बहुत बेयर मार्केट आया, एवरेज रिटर्न 15-16% है, राइट? तो अगला 3-4 साल में अगर 40%, 35% बनाए तो कहीं ना कहीं जाके वो एवरेज होएगा, राइट? So that should be the second thing. That ultimately returns will come down to reasonable level. नहीं निकुंज भाई, सिंपल है ना यार. आज हम जो व्यापारी के कंपनी में पैसा लगाते हैं, वो अगर 15 से 18%, 20% आरओई कमा रहे हैं, हम उसको बोलते हैं बहुत होशियार आदमी है. तो उसका ही शेयर लेके, उसका ही डेरिवेटिव लेके मैं 50% कमाऊंगा तो या तो वो बेवकूफ़ है या मैं बहुत ज़्यादा होशियार हूँ, राइट? तो वो सस्टेनेबल नहीं है. तो दैट द पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 3, नाउ द बिगर मूड पॉइंट है, ये जो करेक्शन आया है, ये अभी जो करेक्शन चल रहा है, आज भी मार्केट इन अ वे बाइड है, राइट? तो इज द बुल मार्केट ओवर एंड आर वी इन रियल बेयर मार्केट, राइट? बड़ा ऐसा लगता है कि कोई कोलैप्स हो जाएगा क्या? तो वो मुझे नहीं लगता है, ऑनेस्टली. मुझे लगता है दिस वाज ए नीडेड, मच नीडेड करेक्शन. देयर लॉट ऑफ काइट फ्लाइंग विच इज गोइंग ऑन, राइट? बहुत सारा, टू सम एक्सटेंट आई वुड से, लॉट ऑफ मैनिपुलेशन ऑल्सो विच इज गोइंग ऑन इन द मार्केट. क्या है एसएमई का, कितना सारा कंपनी रोज आता है निकुंज, है क्या बाबा जी का दिवाली है क्या? मैं in a sense that lot of, and there is lot of mis-selling which is happening at various levels, right? So आप अगर सिर्फ वो अंधाधुन है ना कि ये बुल मार्केट है, हम कुछ भी कर लेंगे, हमारा पैसा बनते रहेगा, तो वो नहीं होने वाला है. One has to recognize. I will make one bigger point, Nikunj. In one market,
there is a severe bear market going on and there is a severe bull market going on. The question is, do you have the ability to identify and spot real good sectors and real good companies? And do you recognize, which is my point number one first, that in all of this allocation, your expectation is moderate. It should be moderate. So from my perspective, return of capital is first priority, return on capital is second priority. तो एक ग्राफ है, इसी बात को आगे मैं बढ़ाता हूँ, एक्सटेंड दिस पॉइंट फर्दर, विच इज़ द मार्केट साइकिल ग्राफ। वो ग्राफ शायद आपको यहाँ दिखेगा, सामने आप देखेंगे तो ये क्रैश के बाद मार्केट चालू हुआ, स्पार्क आया, रिकवरी आई, उसके बाद उसमें हमने देखा डाउटर्स आए, फिर यूफोरिया, एक्साइटमेंट, बबल और क्रैश। तो इस समय मार्केट इज इन विच फेज ऑफ द साइकिल? आर वी नियरिंग अ बबल और वी आर इन अ फेज वेयर यू नीड टू बी केयरफुल? There is select bubble. अच्छा, there is select bubble for sure. जैसे मैं आपके last time, if you remember, we spoke about all the defense companies, we spoke about railway companies, and I was very clear कि नहीं लेने का है। पार्टी खत्म हो गई थी। वहाँ पे पार्टी खत्म, वहाँ पे मतलब the valuation से reach such a stage कि वहाँ से risk reward was not in your favor. तो if you look at वहाँ पे तो 40% 30% करेक्शन बड़ी बड़ी कंपनी में आ गए। तो जहाँ पे बबल था वहाँ पे बबल है, बट टुडे यू कांट से इन फाइनेंशियल स्टॉक देयर इज बबल। नो, यू कांट से दैट। इन फार्मा यू कांट से देयर इज अ बबल। तो यू हैव, एज आई एम सेइंग, देयर आर टू मार्केट्स इन वन मार्केट। तो आपके हिसाब से इस मार्केट में वेयर इज द बुल मार्केट विच इज इंटैक्ट एंड वेयर इज द बेयर मार्केट विच हैज स्टार्टेड? देखो, उससे बड़ा क्वेश्चन है व्हाट वी हैव टू बी केयरफुल। अपने को लगता है कि निफ्टी 24,000 का 15,000 हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा, वो मुझे नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? नहीं लगता, बिकॉज इंडिया स्टोरी इज स्टिल ऑन, राइट, एंड वैल्यूएशन ऑन द होल और नॉट स्कैरी। मतलब ऐसा नहीं हो गया कि वैल्यूएशन इतना ज्यादा हो गया है कि पूरा इंडेक्स का वैल्यूएशन 40 पी हो गया है एंड वी नीड टू वरिंग अबाउट इट। एंड प्लस ये जो निकुंज, ये लास्ट 2 क्वार्टर में जो रिजल्ट खराब आए हैं ना, यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट देयर वाज एन इलेक्शन, तो एलोकेशन ऑफ फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट वाज नॉट हैपनिंग, राइट, इट वाज नॉट ट्रिकलिंग डाउन। अभी इलेक्शन खत्म हुआ है, 2 स्टेट इलेक्शन चल रहा है। आई एम बीइंग टोल्ड lot of money which was stuck because the non release from the government, lot of money is being released. तो ये 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर का रिजल्ट देख के, जिसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस देख के, यू कैन राइट ऑफ द इंडिया स्टोरी के इंडिया स्टोरी खत्म हो गई। आई एम क्वाइट होपफुल दैट द रिजल्ट्स फ्रॉम मे बी 3rd और 4th क्वार्टर सेलेक्टिवली विल स्टार्ट टू इम्प्रूव। और ये निकुंज, ये मैं बोलता हूँ सबसे बड़ा कारण क्या है कि ये बुल रन क्यों नहीं खत्म हुआ है। आई हैव जस्ट गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। आपके घर में मान लो लेट से कोई भी शेयर रह गया और जो बहुत सारे रिटेल आदमी के घर में रह गए, राइट, अब उसका पैसा अफलातून बन गया है। अगर 2 रुपए में किसी के घर में सुजलॉन, किसी के घर में तो था ना, जी हाँ, राइट, किसी के घर, और ऐसे हजारों सुजलॉन हुए हैं, अभी 2 रुपए का 80 रुपए हो गया भाव। तो आपका कितना पैसा बन गया? और वो रिटेल इन्वेस्टर के घर में जिसके रह गया, वो गाड़ी लेके आ रहा है, वो मकान बना रहा है, वो कुछ कर रहा है, पड़ोसी देखते भाई मैं धंधा तो अपना दोनों का वैसा ही है, पर तेरा कैसे ये चल रहा है? तो अभी वो पड़ोसी और उसके पड़ोसी आ रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, और हमको मालूम नहीं इंडिया का डेप्थ कितना बड़ा है, कितना पैसा इक्विटी मार्केट में आ सकता है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते एक और ग्राफिक दिखाते हैं। जो हम डीआई की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड्स आर गेटिंग मनी बिकॉज ऑफ सिप्स एंड बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। डेटा ये है जी मधु जी की इंडिया के अंदर 30 करोड़ नेटफ्लिक्स और ओटीटी अकाउंट्स हैं, मगर सिर्फ 15 करोड़ डीमैट अकाउंट है और 5 करोड़ म्यूचुअल फंड के यूनिक पोर्टफोलियोज हैं। सो दिस इंटायर वाइब्रेंसी विच इज कमिंग बैक बाय डोमेस्टिक इन्वेस्टर, जिसको आप बोल रहे हो पड़ोसी के पड़ोसी के पड़ोसी आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि बहुत पड़ोसी आते रहेंगे? अभी आ सकते हैं, और पड़ोसन भी आएंगे पड़ोसी के अलावा, आ सकते हैं निकुंज। वही मैं मेरा वही कहने का मतलब है, अनलेस द ब्रॉड स्ट्रक्चर रियली क्रैशेस, एंड देयर आर ओनली 2 इवेंट्स फॉर दैट क्रैश। One is something geopolitical which you and I can't comprehend today, which we can't predict. मतलब 2008 के जैसा कोई ग्लोबली हो जावे तो ऑब्वियसली देयर विल बी डैमेज टू द मार्केट। दूसरा, लोकल कुछ बहुत खराब हो जावे। लोकल मुझे दिखता नहीं है क्या उतना खराब हो सकता है which can deter the whole market, right? So what I think is it is possible 26,000 का निफ्टी हुआ था,
23,000 हो सकता है, क्या हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? 10% करेक्शन इतने बड़े बुल रन के बाद कोई बहुत बड़ी बात है क्या? और इन दैट 23,000 निफ्टी देयर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स व्हिच विल फॉल 50-60%, बट वुड यू से दैट इट इज अ बेयर मार्केट? आई वुडंट, राइट? तो व्हाट आई एम सेइंग अबाउट, इधर नजर हटी कि दुर्घटना घटी. If you are, I repeat, if you are intoxicated, ये बुल मार्केट है, मैं कुछ भी करूंगा, मेरा पैसा बन जाएगा, इसने ये ले लिया, मैं उसने वो ले लिया, उसने वो ले लिया, वो कुछ नहीं चलने वाला बॉस. फाइनली मार्केट रिस्पेक्ट्स ROE, कैश फ्लो, प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, एंड यू आर सीइंग टुडे. आप इतना खराब है बाजार, आप देखो ना टॉप 500 में आज भी आपको कम से कम 25 स्टॉक मिल जाएंगे जो 5-5% गेन कर रहे हो. आई लाइक टू ब्रिंग अ पॉइंट फॉर अ व्यूअर्स. हमारे दर्शकों को मैं बताऊंगा कि 2020 की जब भीषण मंदी हुई थी, मधु केला साहब ET नाउ पर आए थे और शायद वही एक थे राकेश जी के अलावा जिन्होंने बोला कि इस समय मार्केट में इन्वेस्ट करिए. कहाँ पे इन्वेस्ट करिए? दम लगा करके PSU स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए. जी हाँ, PSU स्टॉक्स में निवेश करिए. उसके बाद हम सब जानते हैं PSU स्टॉक्स में क्या हुआ. एक महीने पहले तक तो PSU स्टॉक्स का ही बोलबाला था. अब PSU स्टॉक्स थोड़े ढीले हो गए. मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ बिकॉज यू आर द फर्स्ट पर्सन आई रिमेंबर इन 2020, अक्टूबर 2020, यू केम एंड सेड फार्मा और PSUs. अब PSUs में आपकी पकड़ बहुत अच्छी है. अब PSUs को इन जनरल कैसे अप्रोच करेंगे और PSU को आप कैसे क्लासिफाई करेंगे? वो उस टाइप का कंपेलिंग वैल्यूएशन नहीं है निकुंज अभी भी. गिरने के बाद और गिरने के बाद और पब्लिक बहुत आ गई है. See, you know, lot of there is a sense of that over ownership, you know, और एक बार इतना भाव ऐसा आपने बना दिया ना that now every rice people will sell. हाँ, आपने कोई 100 रुपये में लिया, अभी 60 का भाव हो गया, जैसे ही 70-75 होगा गांव निकलने को देखेगा, है ना? तो आई मतलब इट्स नॉट से आई एम सेइंग ब्लैंकेट आई विल नॉट बाय एनीथिंग, बट इट विल बी वेरी टफ टू फाइंड ए रियल बिग विनर. To best of my understanding, I'll wait and watch, monitor earning. अगर उसमें से फिर कुछ सेलेक्टिव लगता है जिसमें रियल में भाव भी घुस गया है और अपने को अर्निंग दिखता है, वैल्यूएशन अपने फेवर में, one will keep an open mind. But sector as a whole, would I find that yes, sector as a whole can do any miracle? तो आपने लास्ट टाइम हमें बताया था कि आपने रेलवे स्टॉक्स में, डिफेंस स्टॉक्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करी थी. अब पूरी खत्म कर दी जोर से आपने. बोला था आपको, पूरा कर दिया, पूरा खत्म कर दिया. तो अब आप PSU जोन नहीं करते? नहीं, कुछ भी नहीं, एक्सेप्ट 1 or 2 PSU banks which is their part of my long term portfolio, nothing. हमने जब दिवाली शोज करे, वी गॉट अ लॉट ऑफ कॉमन थीम विच इज सेंटर्ड अराउंड बैंक्स. सबका मानना है बैंक्स के लिए अच्छा समय आने वाला है. मगर जब इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है तो बैंक्स क्यों लेने चाहिए? माइक्रो फाइनेंस में प्रॉब्लम आ रही है, अनसिक्योर्ड लोन में प्रॉब्लम आ रही है, आज नहीं तो कल यह तो समस्या आ रही है. व्हाई शुड वन बाय बैंक्स व्हेन द इकोनॉमी इज स्लोइंग डाउन? That is where the difference निकुंज. That I do not think that 2 क्वार्टर 1 क्वार्टर का रिजल्ट देख के you can predict कि India is slowing down. I don't think so. That is the first point. दूसरा, when you buy any share, you buy any share because it becomes attractive in terms of valuation. Attractive in relation to the long-term earning growth potential of that sector or the banks were never in a better position. मैं एक सब सेक्टर की बात नहीं करता हूँ, हो सकता है माइक्रो फाइनेंस में थोड़ा स्ट्रेस होगा, बट ओवरऑल बेसिस पे दे आर वेल कैपिटलाइज्ड. इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर इज इन अ पिंक ऑफ हेल्थ. आज मैं बोलूँ निकुंज, 15 साल पहले जब अगर हम बात कर रहे थे ना, यू कुड हैव पिन पॉइंटेड 25 बड़े ग्रुप जो तकलीफ में आ सकते हैं. मैं आपको पूछता हूँ 2 ग्रुप का नाम बताओ बड़े ग्रुप का जो तकलीफ में आ सकता है. सब लोग अब मार्केट में डेट अपना खत्म कर रहे हैं, जैसे वोडाफोन ने करा. ये पॉइंट आपने बताया था. मैं बोला ना, और हो सकता है उसमें इक्का दुक्का कभी होगा भी, ऐसा नहीं बोलते, बट वो तो नॉर्मल क्रेडिट कॉस्ट है, राइट? वन सेगमेंट ऑफ विच इज अनसिक्योर्ड लोन, राइट, जो बहुत सारे बैंकों ने या कंपनी ने अनसिक्योर्ड लोन दिया है ना, वहाँ पे तकलीफ हो सकता है. बट ऑन द होल this sector and companies compared to even their historical average is now trading at a discount in a bull market. That's point number 1. And selectively, because वो एक क्वार्टर का कुछ रिजल्ट आता है, एक इवेंट होता है. देखो, this how we made a lot of money in the pharma. because एक US FD आ गया, 75% डाउन हो गया. अरे बहुत FD आ गया तो क्या बंद हो जाएगी क्या कंपनी? बट ये सिर्फ मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आज आप मेरा बात सुन के कल शेयर ले लिए,
बोला यार मधु केला बोल के गया था 3 महीना हो गया कुछ नहीं हुआ, और 3 महीना में भी 10% और डाउन है। भाई मेरा होराइजन ही नहीं है 3 महीना। आई डोंट इवन वांट टू मेक मनी इन 3 months. What is your time horizon? 3 years minimum. If I'm buying shares today of any bank, any financial institution, I have a 3-year horizon and I'll buy systematically. मेरे को मालूम है मार्केट वीक है, तो अगर सपोजिंग मेरे को कोई शेयर लेना है, 100 शेयर लेना है, हो सकता है मैं 20, 30, 40 शेयर लूंगा, हो सकता है 1-8 क्वार्टर का और रिजल्ट देखूंगा, हो सकता है पीयर कंपेरेटिव सेक्टर का रिजल्ट देखूंगा, कभी कोई टेक्निकल वीकनेस होगी, बाजार 500 पॉइंट निफ्टी घटेगा, तो देन आई बिल्ड सिस्टमेटिकली विद अ मिनिमम 3-year व्यू। तो लेट्स से सपोजिंग आई एम बाइंग सम एक्स कंपनी, आज आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर, आई एम बाइंग सम एक्स कंपनी, as of today it is trading at 1 time book value, and it is my assessment, or it is trading at 0.8 time book value. It is my assessment that it will trade at below 0.5 time book value in 3 years from now, which is my horizon. अभी निकुंज मेरे भाई 0.5 टाइम बुक वैल्यू पे अपन कोई भी शेयर खरीदते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि वो आदमी ने जिंदगी में जो भी काम किया उसका पूरा काम मेरे को आधे अफवर्ट पे रेडीमेड मिल गया, सोना चांदी के भाव पे मिल रहा है, रेडीमेड मिल गया। अब मेरे को कौन हरा सकता है? अनलेस वो कंपनी में बड़ा पोल है विच आई एम मिस्ड, कि बहुत बड़ा कोई प्रोविजन आ जाएगा, कोई एक सेक्टर में बहुत बड़ा, वैसा नॉर्मली बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में दे आर क्लेवर, और वैसा कोई साइकिल मुझे एकदम खराब हो जाएगा, और जैसे वो 2005 और 2020 के बीच में जो एक एनपीएल का साइकिल था, वैसा मुझे कुछ लगता नहीं है। देयर विल बी सेलेक्ट पॉकेट्स वेरिन यू विल हैव एनपीएल, बट मुझे वैसा नहीं लगता है कि अक्रॉस द बोर्ड बहुत बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप को बहुत बड़ी तकलीफ आ जाएगी या बहुत बड़ा एनपीएल साइकिल आ जाएगा, वो नहीं लगता है। मार्केट में सब कहते हैं कि डॉक्टर दवाई बताता है, मगर डॉक्टर कौन सी दवाई बताएगा वो मधु केला जानता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग फार्मा में एकदम परफेक्ट आती है हमेशा, भले ही वो ग्लोबल ट्रेंड्स हो, लोकल ट्रेंड्स हो, भले ही वो CDMO हो, भले API हो। फार्मा के अंदर क्या 3 बड़े ट्रेंड्स आपको लगते हैं अगले 3 से 5 साल? We have been very very bullish, the last 2 years, and touch wood, by the grace of God things have worked out. पर सी मैं ना इस समय सेक्टर की बात नहीं करता हूँ, ये फार्मा सेक्टर अगर अच्छा है और आपने कोई लेट्स से लार्ज कैप कंपनी पकड़ लिया जिसमें 20% ही ग्रोथ हुआ है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज अ बॉटम अप सेक्टर, यू हैव टू, कितने सारे शेयर निकुंज 4-4 गुना हुए हैं फार्मा में इन लास्ट 2 years। ग्लेनमार्क हुआ है, लॉरिस बढ़ा है, शायद वोकार्ड बढ़ा है, जहाँ तक मैं याद कर रहा हूँ। वोकार्ड बढ़ा है, स्ट्राइड्स बढ़ा है, 4-4 गुना हुए हैं, मैं बता रहा हूँ। फ्रॉम अगर कोविड बॉटम से देखोगे तो कई शेयर 5-5 गुना हो गए। It's been a very good run. बस सब थीम्स फार्मा में CDMO, जेनेरिक, एक जो बड़ा थीम है which is from a 10-year perspective, it is CDMO. अच्छा, CDMO क्या होता है? या तो निकुंज ये जो पहले क्या है, कोई भी फॉरेन की जो कंपनी होती है, राइट, जैसे मर्क है, ग्लैक्सो है, दे आर एक्चुअली आउटसोर्सिंग ईदर कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और आउटसोर्सिंग सम मैन्युफैक्चरिंग टू इंडियन कंपनी। So because of the geopolitical situation between between America and China, lot of the work which was going to very large Chinese companies, and which are multi-billion-dollar companies, which have even better capability, better infrastructure, no doubt. But because of this geopolitical reason, that work is shifting. Now where can it shift? It's not it can shift to Mexico, it's not it can shift to Taiwan. वहाँ पे कैपेबिलिटी नहीं, राइट। इंडिया में कैपेबिलिटी है, अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्निकल टैलेंट है, तो वो जो शिफ्टिंग है ना निकुंज, वो 2 साल से चालू हुआ है। इट्स नॉट येट विजिबल इन नंबर्स, राइट, बिकॉज ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आते पहले छोटे से चालू होते हैं, और वहाँ पे भी ऐसा नहीं कि चाइना में अगर उन्होंने बंद कर दिया तो कल अब्रप्टली जाके जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को है उसको बंद कर देंगे। तो वहाँ से धीरे 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 करके डिक्लाइन हो रहा है, और यहाँ पे वो जो बड़े बड़े नए नए कस्टमर है ना, वो आ रहे हैं अभी, ये विजिबल दिखेगा आपको मे बी 2-3 साल के अंदर। कैन CDMO भी 5 times in 10 years? पॉसिबल है, हो सकता है। सेलेक्ट कंपनीज में श्योरली भी। उदाहरण के तौर पर हम स्टॉक डिस्कस नहीं कर रहे हैं, डीवीज है, डीवी CDMO के बिजनेस में, दे आर लीडर्स। लॉरस CDMO के बिजनेस They are में, leaders. और कौन सी कंपनी जो CDMO में, हम उदाहरण के लिए बात कर रहे हैं।
नहीं, अभी इसका वन सोर्स जो नई कंपनी है स्टाइड वाले की जो बनी है, जो लिस्ट होने वाली है, दैट इज अ प्योर सीडीएमओ प्लेयर. पिरामल इज अ प्योर सीडीएमओ. CDMO can be 5 times in 10 years. पॉसिबल है, ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी. पॉसिबल है, बहुत और ये कैसा अनफोल्ड होएगा ना, ये अभी धीरे धीरे अपने को समझेगा. बट आई एम वेरी बुलिश. आप एक, जैसे अभी हम CDMO की बात कर रहे हैं, मगर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, आई हैव हैड द ऑनर प्लेजर टू लर्न फ्रॉम मिस्टर केला ओवर द ईयर्स, और ये अगली जो ट्रेंड है उसको बड़ा अच्छे से पकड़ते हैं. See, again, we've been talking about for 2 years. मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूँ. ये मेरे को क्या लगता है निकुंज, ये बहुत बड़ा मेगा ट्रेंड ना कई सालों में एक बार आता है. जैसे सपोजिंग आपने इंटरनेट पकड़ लिया होता 2000 में, $25 ट्रिलियन का वेल्थ बना ऑन दैट वन वर्ड इंटरनेट. $25 ट्रिलियन का, इंडिया के GDP से 5 गुना ज़्यादा है. कब 6 गुना ज़्यादा. मैं बोल रहा हूँ जिसमें गूगल भी आ गया, अमेजोन भी आ गया, माइक्रोसॉफ्ट भी आ गया, ट्विटर भी आ गया, सारी कंपनी, मेटा भी आ गया, सारी कंपनियां प्रॉस्पर कर पाई, एप्पल भी आ गया, सारी कंपनियां प्रॉस्पर कर पाई बिकॉज ऑफ द इंटरनेट. नाउ व्हाट आई फील इन क्लाइमेट चेंज, ये हम एज ए लेमैन देख रहे हैं. इस बार कितना दिल्ली में तापमान बढ़ा, 52 डिग्री हो गया था. इट वॉज अनलिवेबल कंडीशन. Right? 52 degrees, unlivable condition. Now, based on my understanding and what I have read, let us assume that the no government, no one does anything from today onward. अपना लाइफ जैसा है अपन फॉसिल फ्यूल के ऊपर चलाते रहेंगे. मेरे हिसाब से अगले 20-25 साल के अंदर कम से कम 100 शहरों का तापमान 55 और 65 डिग्री चला जाएगा, अगर हमने आज से कुछ भी नहीं किया. राइट? अब वो रहेगा क्या? नहीं रह सकता है. वो तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है. एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है. अभी एग्जिस्टेंट क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए सारी दुनिया अपना जोर लगाई. जी हाँ, जी. जो कोविड में जैसे सबने जोर लगाया था. हाँ एग्जैक्टली. जैसे मैं बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट भी जोर लगाएगी, पॉलिसी मेकर भी जोर लगाएंगे, नेशंस भी साथ में आएंगे, बिजनेसमैन भी जोर लगाएंगे, हर आदमी अपना अपना जोर लगाएगा. बिकॉज दिस इज अ क्राइसिस विच नीड्स टू बी सॉल्व. राइट? वो अभी ये मेरा एक थ्योरी है. इज देयर ए इंपेरिकल एविडेंस कि वो जोर लग रहा है? एम आई एबल टू सी इन मार्केट प्लेस कि वो जोर लग रहा है? 22% टाइम G20 का वॉज स्पेंड डिस्कसिंग ओनली कार्बन न्यूट्रलिटी. दुबई के जैसे देशों में कार्बन न्यूट्रलिटी को लेके बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, जो पूरी जिंदगी भर ऑयल में डिपेंडेंट. राइट? आज हिंदुस्तान का हर शाना, चाहे गौतम अडानी हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे सजन जिंदल हो, या वर्ल्ड वाइड टेस्ला हो, व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? एनर्जी ट्रांजिशन. तो मैं बोल रहा हूँ भाई, देयर इज एम्पेरिकल एविडेंस. ये लोग तो मेरे से 100 गुना ज्यादा होशियार हैं. जी हाँ, जी. राइट? अगर ये लोग भी ये करना चाह रहे हैं, एंड प्लस व्हाट इज मार्केट शोइंग, 5 रुपए का सुजलॉन 80 रुपए का भाव है. जी हाँ, जी. कहते हैं मार्केट हमेशा ट्रेंड जल्दी पकड़ लेता है. पकड़ेगा ना, नहीं जो पकड़ रहे हैं ना. तो मेरे को लगता है अगेन वी शुड नॉट गेट इंटॉक्सिकेटेड कि ये ट्रेंड है, हम कुछ भी, कोई भी सोलर जिसमें नाम लिखा हुआ है हम ले लेंगे, पैसा बन जाएगा. हो सकता है टेम्परेरी पैसा बन जाए, बट द रियल विनर्स वी हैव टू आइडेंटिफाई अ ग्रेट मैनेजमेंट, ग्रेट प्रोडक्ट फिट, रियल लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन ऑफ द स्केल, रियल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. वो आदमी का, सी there is only one Google, right, in the world. There is only one Apple in the world. अपॉर्चुनिटी हो तो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करने वाले तो 1000 आदमी थे. टूथपेस्ट बनाना बहुत सिंपल है. मैं कोलगेट या HUL में मार्केट गेनर है. तो मैं बोल रहा हूँ वो हमको मिलेगा. आपको मिल गया? मेरे को तो मिला. कौन सा मिला? तो ऐसा अनलिस्टेड कंपनी वारी, जिसमें हमने काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था. अच्छा. हो सकता है अभी उसका IPO आएगा. अच्छा. तो EV और जो कई चीज़ों हम बात कर रहे हैं, उन पे आपकी क्या राय है? बिकॉज वहाँ पे भी काफ़ी एक्साइटमेंट हो रहा है. एनर्जी ट्रांजिशन से ही रिलेटेड है, मगर एक तो हो गया पावर जनरेशन, एक हो गया लॉजिस्टिक्स. क्या उस एंड पे भी नज़र रखनी चाहिए? पक्का नहीं, कुछ बहुत सारी कंपनियां बेनिफिट करेगी. मैंने एक ट्रांसफार्मर कंपनी में इन्वेस्ट किया. सब लोग बोले ट्रांसफार्मर क्यों लिया? मेरा थीसिस ये कार्बन न्यूट्रलिटी था. मेरा थीसिस यही था कि अगर खावड़ा में गौतम भाई 50,000 मेगावाट लगाएंगे तो उसको ट्रांसमिट तो करना पड़ेगा ना मेरे दोस्त. उसके लिए कहाँ से निकालते ये तो उसका ट्रांसफार्मर तो लगेगा ना, पाइप तो लगेगा ना, कोई जोड़ने वाले लोग तो लगेंगे ना. सब काम एक आदमी थोड़ी कर सकता है.
And you can't feed that power because it's 25% PLF. You can't use the same lines which you're using for thermal power. Thank you very much. It's been Thank a you. great show. Thank you Thank very you. much. Thank you very much. Lunch or